अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाउ वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन 22। अब ये जो क्वेश्चन है अगेन इट इज़ फ्रॉम मेजरमेंट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस हमने बाद में प्रॉपर एक क्लास लेंगे, उसके अंदर हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो मूविंग ऑन टू इट्स सेकंड पार्ट, लुक एट दिस डायग्राम। दिस इज क्वेश्चन 22 सेकंड पार्ट। द डायग्राम शोज द पोजीशन ऑफ द बोट ए बी एंड हार्बर एच। So the length of AB is 4 kilometer, AH is 6 kilometer and ABH angle is 70. Calculate AHB. So you have to calculate this angle AHB, this angle. ठीक है, so let's call it angle X. So you know students, if angle and opposite sides and the other angle and then opposite sides, if these two things are connected, so you normally apply sine rule. ठीक है, तो क्या करते हो, sin X divided by 4 is equals to sine 70 divided by 6. Now multiply sine x is equals to 4 sine 70 divided by 6. Put this in calculator. 4 sine 70 divided by 6. So sine x is equals to 0.6265. Now take it inverse. Sine inverse of 0.6265. Shift sine answer. So the answer is going to be 38. X is going to be 38.79. So 38.79. Moving on to next part. The boat at A travels in a straight line to the harbor H. The average speed of the boat is p kilometers per hour. It takes 12 minutes and 20 seconds for the boat to travel from A to H. Calculate the value of p. तो आपको स्टूडेंट स्पीड दी हुई है p किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस आपको पता है फ्रॉम A टू H। डिस्टेंस फ्रॉम A टू H इज 6 किलोमीटर। ठीक है, तो आप एक काम करें, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 6 किलोमीटर। ठीक है, स्पीड आपको दी हुई है p किलोमीटर पर आवर। टाइम आपको दिया हुआ है 12 मिनट्स 20 सेकेंड्स। अब बहुत से तरीके हैं, आप यूनिट सेम करें पहले। तो आई एम गोइंग टू चेंज द यूनिट ऑफ टाइम। तो बेटा आप क्या करेंगे, आप टाइम को पहले थ्रू आउट या मिनट्स में या सेकंड्स में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो 12 प्लस 20 seconds divided by 60 is 0.333. So I would say 12 plus 1 over 3 minutes. So this will be 37 over 3 minutes. 12 plus 20 by 60, ये मैंने मिनट्स बना दिए सर। तो ये आ गया था 37 over 3. Now let's write hours. Hours के लिए आप क्या करेंगे, 37 over 3 divided by 60. So this is 0.2056 hours. तो आप पहले टाइम कन्वर्ट कर लें आवर्स में। ठीक है, नाउ यू नो दैट स्पीड
is equals to distance over time, तो 6 divided by 0.2056, तो स्पीड आपको दी हुई है p, so 6 divided by 0.2056, so that's the answer. Okay, 29.18. So speed p is equals to क्या था, 29.18. So this is the value of p. ठीक है. So moving on to next question. Question 23. The diagram shows the positions of the three forms A, B, and C on a horizontal ground. AB is 950, BC is 680, and AC is 520. Show that BAC is 44. So you have given a triangle and all the sides are given. अगर तीनों sides दी हों, you know it very well that you simply apply the cosine rule. ठीक है? You simply apply the cosine rule. So let's call it angle X. So cosine rule के लिए जो आपने एंगल फाइंड करना होता है उसके ऑपोजिट साइड को आप लिखते हो 680 स्क्वायर is equals to 520 square plus 950 square minus 2 into 520 into 950 into cos of x. Now let's make a fraction. 680 square minus 520 square minus 950 square whole divided by minus 2 times 520 into 950 equals to cos x. Next, you simply put this whole fraction in the calculator. तो वो आएगा 680 square minus 520 square minus 950 square divided by minus 2 times 520 into 950. So the answer is 0.7191 is equals to cos x. Now take inverse. Shift cos answer. So the answer is going to be 44.017. Okay. So up to 1 decimal place, it is just 0 degree. So x is going to be 44.0 degree. ठीक है. Calculate the bearing of A from C. Calculate the bearing of A from C. So for bearing of A from C. So from C means you have to draw the north on C. ठीक है. So let's draw a north on C. ठीक है. North on C. Now you will calculate this angle because C, the angle of A from the north of C. तो you can see कि ये होगा clockwise angle. ठीक है. A ये था, तो इस लाइन का C के नॉर्थ के साथ क्लॉकवाइज एंगल विल बी दिस एंगल. ठीक है. अब ये एंगल कैसे फाइंड होगा स्टूडेंट्स? ओके, सो यू नो दीज टू लाइंस आर पैरेलल. ठीक है, ये दो लाइंस पैरेलल हैं एंड दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग. सो वी नो दिस एंगल. ये एंगल क्या है? दिस एंगल इज सिंपली 125 प्लस 44 डिग्री, जो कि हमने भी फाइंड किया था. ठीक है. सो 125 प्लस 44 इज गोइंग टू बी 169. ठीक है. तो वी नो दैट व्हाट इज दिस एंगल. सो इट इज 180 बिकॉज अगर दो लाइंस पैरेलल हों
तो उनके इंटरनल एंगल जो हैं दे ऐड अप टू 180, ठीक है। इफ थर्ड लाइन इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, तो उनके जो इंटरनल एंगल हैं दोज ऐड अप टू 180। तो इट्स मीन्स कि अगर दो नॉर्थ पैरेलल हैं और मेरे पास ये एक लाइन कट कर रही है, ठीक है, तो ये एंगल मेरे पास है 169, तो व्हाट शुड बी दिस ब्लू एंगल? सो दिस विल बी 180 minus 169, ठीक है। So 180 minus 169 is 11. So this is 11 degree. So now the bearing will be 360 minus 11 degree. So 360 minus 11 degree is going to be 350, 349. ठीक है बच्चों? So the next part is, the next part is so let's write here. So the next part is farm A and farm B are joined by a straight track AB. Amira walks along the track from A at a constant speed of 4.6 kilometers per hour. ठीक है, Amira walk at 4.6 kilometers per hour. ठीक है, calculate the time it takes from Amira to walk from A to the point that is closest to form C. अब ऐसा क्वेश्चन हमने, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है कि शी इज वॉकिंग फ्रॉम ए टू बी। अब देखिए ट्रैक कौन सा है, ठीक है, और क्लोजेस्ट टू सी, इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, क्लोजेस्ट टू सी कहाँ पे होगी? देखें, अमीरा यहाँ से वॉक कर रही है बी की तरफ जा रही है, तो व्हेन ही विल रीच almost at this point, this point, and when he will look at C, तो this is the closest point, ठीक है। और मैंने आपसे कहा भी था कि जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होता है दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो C से इस लाइन का क्लोजेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा? C से इस लाइन का क्लोजेस्ट डिस्टेंस विल बी दिस डिस्टेंस, ठीक है। सो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम C to the line AB. Anyway, so let's, Amira is walking from A to C, so almost there. ABC, let's call it D. This is 90 degree angle. तो मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बायर बना रहा हूँ। This is A, this is 44, this point is D, this is 90 degree, this point is C, this distance is 520. So if I ask you, क्वेश्चन ये है कि अमीरा को टाइम कितना लगता है फ्रॉम ए टू दिस पॉइंट, तो टाइम के लिए हमें स्पीड दी हुई है और डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं, तो फिर हम डिवाइड करके टाइम निकाल लेंगे, ठीक है। तो लेट्स कैलकुलेट डिस्टेंस ए डी। तो इफ़ यू हैव गिवन एंगल 44, सो एक्चुअली ए डी इज बेस, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कॉज 44 is equals to AD means base over hypotenuse which is 520, ठीक है। तो 520 टाइम cos 44 is equals to AD. तो 520 times cos 44, so this is AD is equals to 374.06, ठीक है, बट इट इज मीटर। बट इफ यू रिमेंबर स्पीड आपको दी हुई है किलोमीटर्स पर आवर में, तो लेट्स कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय 1000, so it is simply 0.374 kilometers. So I will write 06, ठीक है, इट डजेंट मैटर, बट पॉइंट के बाद 4 डेसिमल्स आपने लिखने ही लिखने हैं ना। सो 0.374 किलोमीटर्स, ठीक है। नाउ अच्छा, अब देखें भाई, स्पीड आपको दी हुई है, ठीक है, आपने टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है, और टाइम कैलकुलेट करना है तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, टाइम किसके इक्वल आता है,
टाइम इज गोइंग टू बी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। प्लीज़ बच्चों आपने यूनिट सेम करने हैं। देखें जो स्पीड थी ना वो 4.6 किलोमीटर पर आवर में थी, तो जो आपका डिस्टेंस है दैट शुड बी इन किलोमीटर्स। पहले मीटर्स में था, मैंने उसे कन्वर्ट किया था किलोमीटर में। ठीक है, सो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना था 0.37406 डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है 4.6, तो ये आता है आपके पास टाइम। ओके, 0.37406 डिवाइडेड बाय 4.6, तो ये है स्टूडेंट्स टाइम 0.0813। ठीक है, अब ये जो टाइम है ये आपको दिया हुआ है दिस इज टाइम। ठीक है, अब ये आवर्स में आपको दिया हुआ है, तो लेकिन क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन आपको चाहिए मिनट्स एंड सेकंड्स में। तो लेट्स मल्टीप्लाई इट विद 60। ठीक है, सो आवर्स, so t is equals to 0.0813 multiplied with 60. This will be minutes multiplied with 60, तो ये बनता है 4.8790। ठीक है, तो इट्स मीन्स के मिनट्स तो हो गए 4। अब रिमेनिंग जो बने 0.8790 मिनट्स, तो उसको मल्टीप्लाई करें 60 से। ठीक है, तो 0.8790 मल्टीप्लाइड विथ 60, तो ये आते हैं सेकंड्स आपके पास। ठीक है, ओके, एनीवे मल्टीप्लाइड विथ 60, तो यू कैन सी दिस इज 52.7, सो दैट इज 53 सेकंड्स। ठीक है, सो दिस इज 53 सेकंड। बच्चों ने फार्मूलाज याद किए होते हैं कन्वर्जन के ना, तो इट्स अप टू यू। अगर आपको टाइम दिया हुआ है 0.0813 आवर, तो इसको आपने बस मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट करना है। आप बेशक ये मेथड फॉलो ना करें, बट आपने मिनट्स और सेकंड ठीक निकालने हैं। तो 4 मिनट्स हैं, और 0.8790 मिनट्स को जब मैंने सेकंड्स में कन्वर्ट किया तो दैट विल बी, यू कैन सी 52.7। तो वो कह रहा था नियरेस्ट सेकंड में आपने आंसर देना है, तो दैट विल बी 53 सेकंड्स। ठीक है, 4 मिनट्स 53 सेकंड्स। ठीक है, फोर आवर, ये कितना था 53, तो 4 आवर 53 सेकंड्स। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। A helicopter hovers vertically above farm B. The angle of elevation of the helicopter from farm A is 10.7. अब एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या है? देखिए भाई, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया था, और जब भी मैंने उससे कहा था कि वो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड की बात करता है ना, देखिए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड द की वर्ड ना, दिस इज द की वर्ड। बेसिकली ये है 2D शेप। हॉरिजॉन्टल ग्राउंड का मतलब ये है कि ज़मीन के ऊपर आप जो है ना ये पॉइंट्स प्लॉट कर दें ABC। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जो हेलीकॉप्टर है वो बी फॉर्म के ऊपर है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है दैट यू हैव दिस हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है। ठीक है, तो इसके ऊपर 3 पॉइंट्स हैं एनीवेयर, सो द हेलीकॉप्टर इज एग्जैक्टली अबव बी, तो दिस इज द हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर। ठीक है, तो वो कह रहा था कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बी फ्रॉम सम पॉइंट इज गिवन। तो बेसिकली राइट ट्रायंगल में कंस्ट्रक्ट करूंगा। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू, यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर है अबव बी। अबव बी का मतलब है लाइक दिस। ठीक है ना, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बी फ्रॉम ए इज गिवन। ठीक है, सो दिस इज 950, तो यहाँ बनाऊंगा ट्रायंगल। This was B, this was helicopter H, and this was A, और ये आपको दिया हुआ है 10.7। ठीक है, और A से B का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है। ठीक है, A से B का डिस्टेंस आपको क्या दिया हुआ है 950।
सो लेट्स राइट इट ओवर हेयर 950। ठीक है, तो चलिए हम हाइट फाइंड कर लेते हैं हेलीकॉप्टर की फ्रॉम बी। तो वो क्या होगा? सो इट विल बी 10.7 is equals to HB divided by 950. So HB is equals to 950 times 10, 10.7. So it will be 179.50. ठीक है, ये मीटर्स इज द हाइट ऑफ हेलीकॉप्टर फ्रॉम बी। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि कैलकुलेट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द हेलीकॉप्टर फ्रॉम फार्म सी। तो अगेन आप एक और राइट ट्रायंगल बना लें। ठीक है, अब आपको इतना पता है कि फ्रॉम सी है ना, ठीक है, तो बेसिकली ये तो पॉइंट बी ही है, हेलीकॉप्टर अपनी जगह पे ही है, लेकिन वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से कैलकुलेट हो रहा है? सी से कैलकुलेट हो रहा है। तो एज आई सेड कि आप बेसिकली हॉरिजॉन्टल ग्राउंड ज़मीन के ऊपर पॉइंट्स प्लॉट करें। ठीक है, तो पहले हेलीकॉप्टर था बी के ऊपर। ठीक है, उसकी जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो कहाँ से था? ए से था। अब जो हेलीकॉप्टर है वो अगेन बी पे ही है, लेकिन उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कैलकुलेट करना है हमने सी से। तो दिस इज़ द एंगल वी वांट। बट ये हाइट तो वही है ना हेलीकॉप्टर की, कितनी थी? 179.50। ठीक है, और बी से सी तक का डिस्टेंस अब डायग्राम में दोबारा देखें, बी से सी तक का डिस्टेंस इज 680। 680। तो अगेन आप क्या करोगे? tan अप्लाई करोगे, तो tan x इज इक्वल्स टू, एक्स हमने आई थिंक पहले भी यूज़ किया था, कोशिश किया करें डिफरेंट वेरिएबल्स यूज़ किया करें। tan x इक्वल्स टू 179.50 डिवाइडेड बाय 680। तो x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 179.50 divided by 680. So shift tan 179.50 divided by 680. So this is x is equals to 14.79. ठीक है बच्चों, दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द हेलीकॉप्टर फ्रॉम सी। ठीक है, तो था क्या? बेसिकली आपको जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ था हेलीकॉप्टर का फ्रॉम ए, दैट वाज गिवन 10.7, और हमने उसको यूज़ करके हेलीकॉप्टर की बी से हाइट निकाली। उसी हाइट को यूज़ करके हमने हेलीकॉप्टर का सी से एंगल ऑफ एलिवेशन निकाला। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 24। अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। ठीक है, अ पाथ क्रॉसेस द फील्ड फ्रॉम पी टू आर। PQ is 280, RS is 146, and PR is 325 meters. S is on a bearing of 42 degree from P, and PSR is 108. RPQ is 38. Calculate the bearing of R from P. Calculate the bearing of R from P. So you have to calculate this bearing R from P. तो from P का मतलब ये है कि आपने you have to calculate this angle। ठीक है, तो उसके लिए मुझे ये इनसाइड वाला एंगल चाहिए। ठीक है, तो एंगल के ऑपोजिट साइड गिवन है, इस एंगल के ऑपोजिट साइड गिवन है। तो व्हेन टू पेयर्स आर कनेक्टेड, ठीक है, तो आप क्या लगाते हो? साइन रूल लगाते हो। ठीक है, तो साइन रूल क्या होगा? साइन एक्स डिवाइडेड बाई 146 इज इक्वल्स टू साइन 108 डिवाइडेड बाई 325। ठीक है, तो साइन एक्स 146 साइन 108 divided by 325. So sin x is equals to 146 sin 108 divided by 325. So 0.4272. ठीक है, x is equals to sin inverse of 0.4272. Shift sign answer.
So x is going to be 25.29 degree. ठीक है बच्चों, 25.29 degree. So this x is the actually this angle. ठीक है, inside वाला. तो हमें ये तो नहीं चाहिए था ना, हमें तो ये पूरा चाहिए. सो तो बेरिंग क्या होगी? बेरिंग विल बी 42 प्लस 25.29. ठीक है, so that will be 67.29. So you will write 067.29 degree. ठीक है, as you know that बेरिंग क्या होती है, 3 डिजिट्स में लिखते हैं ना हम. The next part is show that QR is 202. Where is QR? So again students, you have given victory sign. ठीक है, so victory sign आपको दिया हुआ है 325, 280. ठीक है, and then इंटरनल एंगल इज 38. तो आपने ऑपोजिट साइड फाइंड करनी है ना. तो ऑपोजिट साइड फाइंड करनी हो विक्ट्री साइन के अंदर, तो आप क्या लगाते हो? को साइन रूल लगाते हो. ठीक है, तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 325 स्क्वायर प्लस 280 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 325 इंटू 280 इंटू कॉस 38. ठीक है, so 325 square plus 280 square minus 2 times 280 times 325 times cos of 38. So QR whole square is equals to, it has 3 marks, so आपने please step लिखने हैं 40607 40607.04. ठीक है, so now QR is square root 40607.04. ठीक है, so square root of answer, so you can see it is 201.5. so correct to nearest meter, it would be 202 meters. ठीक है बच्चों, so now we have a question. Mia walks at a constant speed of 5.5 kilometers per hour. Calculate the time it takes her to walk from Q to R. ठीक है, give your answer in minutes and second correct to nearest seconds. अब आपको बेसिकली स्पीड दी हुई है और आपने टाइम कैलकुलेट करना, हम पहले भी करके आए थे. क्यू से आर का पहले डिस्टेंस देख लेते हैं. सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन क्यू टू आर? क्यू टू आर का डिस्टेंस हमने भी कैलकुलेट किया था एंड दैट इज 202 मीटर्स. ठीक है, सो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 202 मीटर्स. ठीक है, सो डिवाइडेड बाय 1000 विल बी 0.202 किलोमीटर्स. ठीक है, सो नाउ speed is distance over time. तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस ओवर स्पीड. तो डिस्टेंस क्या था? 0.202 डिवाइडेड बाय स्पीड क्या है? 5.5. ये आएगा जी टाइम ओवर्स में. ठीक है, तो 0.202 डिवाइडेड बाय 5.5, so it is 0.0367. ठीक है, hours. So multiplied with 60 to get 2 minutes. ठीक है, 2.2036 minutes. ठीक है, एंड देन बाकी आप क्या करेंगे? 2 minutes कॉमा 0.236 मिनट्स को आप कन्वर्ट करें सेकंड्स में. तो कैसे करेंगे? 0.236 मल्टीप्लाइड विथ 60 मल्टीप्लाइड विथ, मिस्टेक तो नहीं कर दी मैंने? यस, 2036.
0.2036. 0.2036 multiplied with 60. So you can see it is 12 seconds. ठीक है, it is 12 seconds. So 2 minutes 12 seconds. Moving on to next question, that is question 25. ABCD is a field with AB is 750, BC is 600. Inside the field is a straight path AC of length 800 meter and DAC is 90 degree. ठीक है, तो एक राइट ट्राइंगल दी हुई है और एक कोई और ट्राइंगल है. Show that ACB is 62.9. तो all the sides are given again. तो जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करेंगे, कोसाइन रूल लगाएंगे. ठीक है, तो क्या करेंगे, 750 स्क्वायर is equals to 800 square plus 600 square minus 2 times 800 into 600 into cos of x. ठीक है, so 750 square minus 800 square minus 600 squares divided by minus 2 into 800 into 600 is equals to cos x. Make a fraction. 750 square minus 800 square minus 600 square divided by minus 2 into 800 into 600. So it will be 0.4557 is equals to cos x. So x is going to be cos inverse of 0.4557. ठीक है, shift cos answer. So it is 62.9 degree up to 1 decimal place. The area of the field is this. तो अब वो फील्ड किसे कह रहा है, फील्ड इज द होल ABCD. ठीक है ना, ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है उसको फील्ड का नाम दे रहा है. तो एरिया ऑफ द फील्ड इज गिवन, कैलकुलेट AD. ठीक है, तो आपने AD कैसे कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप क्या करें, आप इस राइट ट्राइंगल का एरिया निकालें. तो कैसे निकालेंगे, देखें, आप पहले इस एरिया में से you will subtract the area of this triangle. So the remaining answer will be the area of this triangle. And then using the base times height, we can find the AD. ठीक है, so let's proceed. तो triangle ABC का एरिया हम कैसे निकालेंगे, triangle ABC, इसका एरिया क्या होगा, 1/2 800 into 600 into sine of angle between them. तो sine of angle between them is x और x हमने निकाल लिया था, that is 62.9. ठीक है, so 0.5 times 800 times 600 times sine 62.9. ठीक है, तो area is 213,651.0, I would say 7. तो ये एरिया है ट्राइंगल ABC का. ठीक है, so let's subtract it from 3 ट्राइंगल. नीचे वाले कौन सा ट्राइंगल है, ADC, क्योंकि राइट ट्राइंगल है ना. ADC का एरिया क्या होगा भाई, तो ये होगा 375,000 माइनस 213,651.07. ठीक है, so 375,000 minus 213,651.07. तो जो ट्राइंगल राइट ट्राइंगल के एरिया आया वो आया 161,348.93. ठीक है, ये है जी आपका राइट ट्राइंगल का एरिया.
नाउ यू विल सिंपली डू 1/2 बेस इंटू हाइट टू कैलकुलेट AD। ठीक है, तो हम यहाँ से करके इसको वहाँ पेस्ट कर देंगे। ये देखें जी, अब हमने क्या करना है, ट्रायंगल होता क्या एरिया, एरिया का फॉर्मूला होता था 1/2 बेस टाइम हाइट। अब बेस हम कंसिडर करेंगे इसको, हाइट हम ले लेते हैं इसको, जस्ट बिकॉज दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो बेस कैन बी आइदर दिस और दैट, तो लेट्स कॉल इट AD बेस। और एरिया हमने निकाल लिया, एरिया क्या है 161348.93 इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इज AD, हाइट इज 800। ठीक है, सो यहाँ से AD की जो वैल्यू आएगी, AD इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स, अच्छा यहाँ पे आप इसको रीअरेंज ना करें, डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। 2 टाइम्स 2 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई करोगे, सो 161348.93 डिवाइडेड बाय 800, तो यहाँ से AD की वैल्यू आएगी 403.5। ठीक है, सॉरी 4, सो AD की जो वैल्यू आएगी दैट इज 403.37। Next we have calculate ACD. So we have to calculate now ACD. Where is angle ACD? ACD is this angle. ठीक है, अब देखिए हमने AD कैलकुलेट कर लिया ना, दैट इज 403.37, 403.37। So now you have to calculate this angle, let's call it Y। ठीक है, तो this is a right triangle, opposite to Y is perpendicular and adjacent to Y is base, तो you simply write tan Y is equals to perpendicular 403.37 perpendicular divided by base is 800। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स ऑफ 403.37 डिवाइडेड बाय 800। ठीक है, सो y इज इक्वल्स टू शिफ्ट tan 403 डिवाइडेड बाय शिफ्ट tan fraction 403.37 divided by 800। So the answer is 26.76। So ACD is 26.76। ठीक है, X is the point on DC such that AX is 500। ठीक है, calculate the obtuse angle AXC। AXC this angle। ठीक है, तो हमने ये एंगल कैलकुलेट करना है, बट प्लीज कीप इन योर माइंड दैट वी हैव दिस एंगल ACD। दिस एंगल इज गिवन, इट वाज 26.76। ठीक है, तो ये एंगल आपको दिया हुआ है, आपने AXC कैलकुलेट करना है, तो क्लियरली यू कैन सी XYZ, सो लेट्स कॉल इट एंगल थीटा दिस टाइम। ठीक है, opposite to the theta it is given 800 and opposite to this angle it has given 500। तो आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं साइन रूल। ठीक है, तो साइन रूल क्या होगा, तो साइन थीटा ओवर 800 is equals to साइन 26.76 divided by 500। so साइन थीटा is equals to 800 into sine 26.76 divided by 500। So fraction 800 sine 26.76 divided by 500, तो 0.7204।
0.7204। ठीक है, तो यहाँ से इन्वर्स ले लें इसका। शिफ्ट साइन आंसर, सो इट इज 46.08। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल्स टू 46.088 डिग्री। ठीक है, लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, देखिए वो कह रहा था कि ऑब्ट्यूस एंगल निकाले ना, तो इस जो साइन और कोसाइन होता है इससे हमेशा एक्यूट एंगल आते हैं। एक्यूट एंगल का मतलब है दिस एंगल, सो दिस इज एक्चुअली 46.088। सो वी एक्चुअली वांट टू कैलकुलेट ऑब्ट्यूस एंगल। तो एक्यूट से ऑब्ट्यूस कैसे निकालते हैं? यू नो इट वेरी वेल दैट ए एक्स सी is actually 180 minus 46.088। ठीक है, so 180 minus 46.088 degree, so that's the answer। ठीक है, so it is 133.9, so it is 133.91 degree, 133.91 degree। ठीक है, so that's the answer। Moving on to question 26, a light L is fixed on a building 8 meter above the base B of the building. A point P is on the horizontal ground 12 meter away from B. Calculate the angle of elevation of L from P. L from P. L from P। ठीक है ना? So this angle। ठीक है? L from P is this angle। So let's call it angle X। आपको एक राइट ट्रायंगल नजर आ रही है, तो you have to calculate this X। तो how you will calculate बच्चों? Tan X is equals to perpendicular over base, so 8 over angle of elevation is this angle ना। अगर आप if you look at from P to L, तो जो बॉटम पे एंगल बनता है इसे आप एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हो। तो 8 over 12, so x is going to be tan inverse of 8 over 12 shift tan 8 divided by 12, so 33.69 degree, 33.69 degree। ठीक है, next we have a ladder is placed on the ground at Q to reach the light L। ठीक है, the ladder makes an angle 70 with the ground। Calculate QL। तो बच्चों अब आपने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है QL। ठीक है, अगेन यू हैव गिवन अ राइट ट्रायंगल, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, एंगल दिया हुआ है, तो साइन इज द बेस्ट ऑप्शन सम पीपल हैव। सो साइन 70 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर विच इज 8 ओवर हाइपोटेन्यूज विच इज QL। तो यहाँ से QL को बनाए सब्जेक्ट 8 over sine 70, so 8 over sine 70 is going to be 8 divided by sine 70, that is going to be 8.51। ठीक है बच्चों, 8.51। next we have a question, a vertical pole RS of length 1.6 meter is placed touching the horizontal ground, the light produces a shadow TS of the pole on the ground, LRT is a straight line, and TB is given 6.5 meters। Calculate TS। अब बच्चों देखें यहाँ पे सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट है ये। सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट कैसे है? आई एम सॉरी, टी एस आपने कैलकुलेट करना है ना, दिस इज द क्वेश्चन टी एस। ठीक है, तो यू हैव गिवन टू ट्राइंगल्स, ये देखें एक ट्राइंगल ये है और दूसरी ट्राइंगल क्या है, ये बड़ी वाली है ना। ठीक है, सो दिस एंगल इज कॉमन इन बोथ ट्राइंगल्स। ठीक है, and similarly this angle is 90, like this angle is 90, this angle is also 90। why this angle is 90? because they are saying length, vertical pole का मतलब ये है कि this RS is also a vertical height। okay, so if this is vertical on the horizontal, that's means कि ये angle 90 है। ठीक है, तो anyway
ये एक ट्राइंगल है, दिस इज स्मॉल ट्राइंगल TRS, ठीक है, दिस इज सिमिलर टू बिगर ट्राइंगल दिस TLB। सो आई वुड से TRS, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि जब SSS होता है साइड, जब तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं ना, जब दो एंगल्स इक्वल हो तो बेसिकली SS होता है सिमिलरिटी में, ठीक है। तो if two angles are equal they are similar, two triangles anyway, TRS is similar to bigger triangle TLB। तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो आप क्या करोगे, उनकी रेशियो इक्वेट कर दोगे। तो जो आपने कैलकुलेट करना है, प्लीज प्लेस इन द न्यूमरेटर TS डिवाइडेड बाय, अब मुझे बताएं TS दिस इज दिस बेस। अब ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, दिस बेस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द लार्जर बेस दिस वन, तो दैट इज 6.5। तो 6.5 अगेन इज इक्वल्स टू, अब छोटे ट्राइंगल में कोई भी मुझे आप बता दो लेंथ, यू हैव गिवन RS, तो दैट इज 1.6 डिवाइडेड बाय इस जैसी मीन इसके कॉरस्पॉन्डिंग बड़ी हाइट ट्राइंगल में क्या है, दैट इज 8। तो यहाँ से आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे TS, दैट इज 1.6। सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट बच्चों आपको बहुत अच्छा आना चाहिए, ये हर जगह यूज होता है। सो 1.6 टाइम्स 6.5 डिवाइडेड बाय 8, सो द आंसर इज 1.3, ठीक है। Moving on to question 27. So you have given two triangles connected to each other. You have to calculate DAC. DAC, this angle. So let's apply sine rule again. So sine x over opposite to x, it is given 3.8 is equals to sine 63 divided by opposite to 63, it is given 5.3. So sine x is equal to 3.8 sine 63 divided by 5.3. So sine x is equals to, so sine x is equals to 3.8 sine 63 divided by 5.3, so 0.6388. So x is equals to sine inverse of 0.6388. Shift sine आंसर इक्वल्स टू, तो x की वैल्यू क्या आएगी 39.70, ओके, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो 39.70 डिग्री। सो दैट्स द आंसर। Calculate ABC. Calculate angle ABC. So in this triangle you have to calculate this angle. देखें तीनों साइड्स आपको दी हुई हैं, जब तीनों साइड्स आपको दी होती हैं सो यू डेफिनेटली अप्लाई कोसाइन रूल, ठीक है। तो कोसाइन रूल कैसे अप्लाई करेंगे बच्चों, लेट्स कॉल इट एंगल y, let's call it angle y. So opposite to y it is 5.3 का square is equals to 6.4 का square plus 9.7 का square minus 2.6.4, 2 times 6.4 into 9.7 into cos of y, ठीक है। So it is 5.3 square minus 6.4 square minus 9.7 square divided by minus 2 into 6.4 into 9.7 is equals to cos y, ठीक है। So fraction 5.3 square minus 6.4 square minus 9.7 square divided by minus 2 times 6.4 times 9.7, 0.8615, ठीक है, is equals to cos y. So y is equals to cos
0.8615. ठीक है, shift cos answer. So the answer is y is equals to 30.52 degree. ठीक है, 30.52 degree. So that's the answer. Next part is, next question by the way, is 28. So let's continue this question, students, in the next class. Okay, Allah Hafiz.